ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਪਰਮ ਸੋਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰੱਖੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 20-25 ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਾਬ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਕ, ਸਾਗਵਾਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 8-9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ ਲਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਰ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਦ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬੈੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਲੀਆ ਦਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਚਲਾ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, 1-2 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ डॉक्टर साहब आप उनके साइन लो, मेरे साइन करवाओ और ये चीज़ यहीं दफ़ा दफ़ा करो, कोई पर्चा नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने अपने मुंह से सुना था। क्या सुना था आपने जी? मैंने यही सुना है। मैं वहाँ पर्दे के पीछे खड़ी थी, उनको नहीं पता मैं खड़ी थी, लेकिन उसने बात की है डॉक्टर से कि एक मेरे साइन करवा ले, एक बाहर वाली पार्टी के साइन करवा ले, साइन करवा के इनको घर भेज दे और मामला यहीं रफा दफा करवा दे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो मीनाक्षी है जी। तो इसके बाद इनका इलाज मैं लड़के की माँ हूँ। कहाँ लेके गए आप? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। उन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने साइन नहीं किया और एक पेपर लेके आए, उन पे ये लिखा हुआ था जो हमने इनके ऊपर ट्रीटमेंट किया है ना जी, ऊपर जो अपने स्टिचिंग लगाए हैं, ये उसका पेपर है कि आपकी रजामंदी से हमने ये स्टिचिंग लगाई, इस पे पेपर पे साइन कर दो। तो ये कहते कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तो इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, जो इनका बेटा है दूसरा, उनसे पढ़वाया, पढ़वा के उस पर लिखा हुआ था बेटा ये क्या लिखा हुआ, कहते ये डिस्चार्ज के पेपर है। लेकिन बोला क्या गया था कि इसकी जो स्टिचिंग वगैरह किए गए उस चीज़ के पेपर है। अब इससे ये चीज़ जाहिर होता है कि इन्होंने दबाव था पूरा कि इनको डिस्चार्ज किया जाए। मेरे को समझ नहीं आ रही क्यों किया गया है। फिर वहाँ से इन्होंने धक्के से इन्होंने वो डिस्चार्ज पेपर साइन नहीं किए, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए जब इनको लगा कि इस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, वो इनका रवैया देख के उसके बाद ये अपने हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर साहब अपने जो हड्डियों के डॉक्टर है, क्या नाम उनका, नीरज चौधरी जी के पास लेके गए हैं। नीरज चौधरी के पास जब बच्चे को लेके गए हैं तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ गए हॉस्पिटल में,
है तो वहाँ पे हॉस्पिटल जाने पे बच्चे को खून की उल्टी आ गई नीरज चौधरी जी के पास, और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप इनको किसी भी दिमागी जो हॉस्पिटल है चोट लगी हुई दिमाग पे सिर पे लगी हुई है, न्यूरो सर्जन के पास ले जाओ। तो इन्होंने फिर ललित जी अपनी जो है अपने स्पाइन दिल्ली स्पाइन केयर वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो हमारी हर सेवा में हमारे साथ देते हैं, हर ऑपरेशन में भी इलाज में हेल्प मिलती है उनके पास ले गए। उन्होंने जाते ही इनको स्टिचिंग देखे, वो कहते स्टिचिंग किसने लगाए हैं, वो कहते अपने डॉक्टर साहब ने लगाए हैं, पर लेकिन आप जितनी भी जल्दी हो ना इनका ऑपरेट कर लो, आपके पास आए हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचा लो। अब ये इनके जो पिताजी है ये इतने सालों से सेवा कर रहे हैं मंदिर के अंदर, 2-5-5, 10-10, 20-20 रुपए, अगर कोई इनकी सैलरी नहीं आती, गरीब परिवार की है, 2 बच्चे इन्होंने पढ़ा के लिखाए जी। मेन ये है कि इनका इलाज कहाँ चला, कहाँ हुआ? दिल्ली अपने जो स्पाइन केयर वाला है जो उनके पास चला। इनकी हालत कैसी है? अब इनकी कल रात को ही छुट्टी दी है डॉक्टर साहब ने, इनका ट्रीटमेंट अभी सिर के जो जख्म है बिल्कुल वो स्टिचिंग लगा दिए, वो आपने देखे होंगे पहले वाला जो स्टिचिंग देखे और अब वाले देखो जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने लगाए हैं। क्या डिमांड क्या करते हैं? डिमांड ये करते हैं जी, देखो मेरी बात सुनो, आज आप हम इनके साथ आए, समाज सेवी संस्थाएं सारे हमारे साथ आए हुए हैं, सुदर्शन पाजी भी आए हैं, सुमित मेहता जी भी आए हैं, कुलदीप जी अपने सारे अपने साथ आए, इसलिए आए हैं क्यों ये चीज़ एग्जाम्पल मान के चलो, मैं रोड पे जा रहा हूँ सर और मेरे पत्थर से किसी पत्थर से मैं टकरा जाता हूँ, गिर जाता हूँ, चोट लग जाती है, और आप खुद ये चीज़ मेरी देख रही हो कि मैं गिरा हूँ इस पत्थर से, आपका फर्ज बनता है कि वो पत्थर उठा के साइड में रख दूँ, कोई और ना इससे गिर जाए। आज इनके बच्चे के साथ हुआ है सर, ठीक है, इतने हॉस्पिटल सिरसा वाले में है, हमारी पूरा कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं हर चीज़ के अंदर, उनकी पोस्टें भी डालते हैं इस टीम ने और उनके स्टाफ ने हमारी पूरी हेल्प की है। लेकिन आज जो SPS हॉस्पिटल है हमारे गुरुओं के नाम पे है, सदगुरु प्रताप सिंह जी के नाम पे है, उनके हॉस्पिटल में ऐसे 9 सिखिए डॉक्टर जिनको ये नहीं पता जख्मों के ऊपर टांके कैसे लगाए जाते हैं, जख्म खुले छोड़ रखे हैं, पट्टी ढककर उसी दिन डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हमको जानना है। और वो उन्होंने जो गलती की है, अगर वो गलती की माफिया मांगते और आगे से भविष्य में कान पकड़ के माफी मांगे कि ये चीज़ हमारी से नहीं होगी और ये चीज़ की, तब हम छोड़ेंगे। 48 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं उनको, वो इस चीज़ पे विचार करें कि जो उन्होंने गलती की है उस चीज़ का सुधार करें वो, नहीं तो 48 घंटे बाद जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं मीटिंग करेंगी उसके हिसाब से चलेंगे। और सभी डॉक्टरों से, जितने भी सिरसा के हॉस्पिटल वाले हैं, उनको भी ये चीज़ पता चल रहा है कि डॉक्टर ने ये गलती की है, ये चीज़ देखो आप, जख्म खुले छोड़ रखे हैं। हम बिना फालतू किसी के पीछे नहीं आए और ना हम किसी डॉक्टरों के हम दुश्मन हैं, लेकिन जो आज इस डॉक्टर ने, जो 9 सिखिया डॉक्टर है, उसने सभी डॉक्टरों के हॉस्पिटल स्टाफ की जो इमेज खराब की है, ये चीज़ क्या आप बच्चा भी बता देगा कि ये डॉक्टर ने किसी न किसी कारणवश इनको ये खराब करना चाहे, मान के चलो ने अपनी लिंक सुधारे या पैसा खाया, कुछ भी किया है, पर लेकिन इस बच्चे की जिंदगी, एक बूटा भी लगाते हैं ना, घर में पौधा लगाते हैं, 3-4 दिन के बाद कोई कुत्ता बकरी कोई भेड़ भी उसको खा जाती है तो हमारे दिल में चोट लगती है सर। ये तो इतना 20 साल का बच्चा है जिन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, अगर इसकी जिंदगी के साथ अगर पौना घंटा इन्होंने पहले खराब किया हॉस्पिटल से पहले पहुंचने के बाद, फिर शाम को डिस्चार्ज करवा रहे हैं, इतना खुला जख्म है, इसके ऊपर पानी पी इन्फेक्शन फैल जाता, दिमाग का काम है। हमने इतने केस पे 1 महीने के अंदर करवाए दिमागों के लोगों के, जिनमें से कईयों को हम बचा भी नहीं सके। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम जयवीर शर्मा है, और SPS जो अस्पताल है वहाँ जो डॉक्टर अनिल है उसने जो आपने देख ही लिया, जो ये टांके जो दबाव बनाया ये बिल्कुल गलत है। मेरे बेटे पे मतलब जान पे बनाई थी। मैं चाहता हूँ कि वो दबाव वो किस चीज़ का था, कोई लिंक थे, कोई VIP लिंक थे, या कोई पैसा दिया गया है। पैसा मैंने भी दिया है इलाज के लिए, लेकिन दबाव क्यों बनाया कि बेटे को ले जाओ। वहाँ कोई दिवाली होली कुछ नहीं था, कोई आधी रात नहीं थी, सिर्फ दोपहर के 3 बजे का टाइम था। दोपहर के 3 बजे सिरसा के बीचों बीच SPS का नाम है, शहर के सिरसा बहुत बड़ा शहर है, तो ये लापरवाही मैं चाहता हूँ कि सख्त कार्रवाई हो। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक पेशेंट का मामला था, केशव कोई 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट वाला केस था आपके पास। हाँ जी तो उसमें क्या रहा था सर डॉक्टर साहब? परिवार कह रहा है कि उपचार सही ढंग से नहीं हुआ या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। देखो जी, मेरा जो काम था मैंने कर दिया था। मैंने क्या मैंने पहले अगर एक्सीडेंट आया था जी, उनके पहले क्या है, CT करवाई थी, CT नॉर्मल थी। उसके बाद क्या उनको बूंद था। अच्छा बूंद पे क्या था, जो स्टिच लगाने थे जी, मैंने स्टिच लगा दिए जी। उसके बाद क्या एक्सरे करवाया था, एक्सरे में फ्रैक्चर था जी। एक्सरे में फ्रैक्चर था तो मैंने पेशेंट को आगे रेफर कर दिया जी। अच्छा जी। वो कहते हैं जी इनको एडमिशन करो। मैं कहता हूँ मेरा तो कोई काम नहीं एडमिशन का, पेशेंट स्टेबल है, जो कंडीशन स्टेबल है, मैं आगे रेफर कर रहा हूँ जी जी। बस ये था जी, और तो कोई इशू नहीं था। क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी शाम को, तो वो बता रहे थे कि मतलब एक तो योगेश जी आपके हैं और एक आप हो, मतलब उनके पास आया था तो जबरदस्ती डिस्चार्ज करने की कोशिश की है, पेशेंट को सही ढंग से देखा नहीं और उपचार भी बेटर क्योंकि टांके जो लगाए थे टांके सही नहीं लगाए,
मतलब एक परफेक्ट टांके नहीं लगाए गए आपकी तरफ से ये सर पे जो। परफेक्ट देखो जी, चलो जी एक बार मैं करता हूँ जी एक बार थोड़ी। ओके सर।